Hello friends, I hope you all are doing very well. So now the third prize of Nobel Prize 2024 that is in chemistry has been announced. So इस साल का chemistry का Nobel Prize announce हो चुका है and I'm right now live discussing this important prize which has been given in the field of computational chemistry or biology or biochemistry or biophysics, whatever you call it. I've been always talking about one very important area of biotechnology called bioinformatics. That is a amalgamation of biology, life science and computational science. इस फील्ड में कई सारे रिसर्च हुए हैं और आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी जिस तरह से इस एज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आने वाले टाइम में बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स होंगे एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट now biotechnology has become very very applied and also interdisciplinary. That means biotechnology with nanotechnology, nanobiotechnology, biotechnology with robotics, biorobotics, biotechnology with electronics, that is again bioelectronics. That means biotechnology itself as a field, as a discipline, is getting connected with other areas of science and technology and revolutionizing the entire areas of technology, and that is going to happen in future. तो ये बहुत ही लाजवाब है. मैं ये कहता हूँ कि ये इस तरह का जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये कभी इंसान ने सोचा नहीं था कि 21वीं सदी में इस तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस होंगे. और इस बार का नोबेल प्राइज, जितने भी नोबेल प्राइज अभी आए हैं मेडिसिन में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, मतलब आउटस्टैंडिंग. नोबेल कमेटी का इस बार जो सिलेक्शन हुआ है आउटस्टैंडिंग और बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि फ्यूचर जो है ऐसे फील्ड डोमिनेट करेंगे. और सबसे बड़ी बात यह है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको इस बार नोबेल कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया. इवन दिस ईयर केमिस्ट्री अवार्ड हैज कनेक्शन विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. You know that last session which I did for Nobel Prize in Physics 2024, that is given to artificial neural network and machine learning, that's again AI, right? This chemistry award again connected with AI. So let us give you the names of Nobel laureates. The three are there, 3 Nobel chemist laureates hai. It has been divided into half and half. That half prize has gone to David Baker, right, who is just a first photograph here. Another half amount of money, the prize money, has been split into 2 prizes to 2 scientists. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि both the scientists are working with Google DeepMind. Google has a number of divisions and Google company is doing pioneering work in AI. So Google DeepMind CEO, that is a head of that company, that division, Google DeepMind, which has worked to develop AI tool which can be used for protein design structure prediction. And the name of the scientist is Demis Hassabis. He's a Britain scientist belonging to UK. And then 1/4, the second scientist, again from DeepMind, he is a senior scientist. His name is James Jumper, which you can see in the part John M. Jumper. जॉन जंपर. तो कहने की बात यह है कि आप देखो इस बार दोनों साइंटिस्ट गूगल में काम करते हैं, जॉन जंपर और जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं, और जो सीईओ है डीप माइंड का, दैट इज अ डेमिस हैसाबिस. इन्होंने जो काम किया है सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम जो मैंने बताया बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एंड डेवलप दिस काइंड ऑफ टूल विच इज आउटस्टैंडिंग. प्रोटीन is the building block of life. You all know that proteins, that is a building block of life, all forms of life, right, that all depends on proteins. Human body has got many types of proteins, whether it's the antibody which fight infection, whether it is our a part of a hormone system like insulin, again made of protein, our skin, keratin, made of protein, our nail, made of protein, our hair, made of protein.
hemoglobin which bind oxygen, carbon dioxide, help in transport, again protein. Our muscle has got proteins. The human body itself has got so many proteins. और अगर हम जीव जगत की बात करें, है ना, लिविंग वर्ल्ड की बात करें, तो अराउंड अभी तक की बात है, around 300 million proteins have been found out by scientists from all over the world. More than 190 countries have found out, right, 300 million proteins which are found in different types of life forms. ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है. एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है पीडीबी, प्रोटीन डेटा बैंक कहते हैं. जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जिसकी खोज हुई है, चाहे वो स्नेक वेनम की बात करें, सांप के जो वेनम होते हैं उसके प्रोटीन की बात करें, या ह्यूमन की अगर हम एंटीबॉडी की बात करें, जितने भी लिविंग वर्ल्ड है, राइट फ्रॉम माउस, है ना, चूहे से लेकर मैन तक, नॉट ओनली दैट, इवन बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, whatever the proteins have been there, the scientists have done, found out all over the world in different labs, protein chemistry, protein structure, all this. Now the understanding of that molecular level, biochemistry, that is again helping out. और आपको पता है कि जब हम कोई भी रोगों की बात करते हैं, डिजीज की बात करते हैं और उसके सोल्यूशन की बात करते हैं, तो डिजीज को सॉल्व करने के लिए हमें जो दवाइयां चाहिए या कोई भी हम वैक्सीन बनाते हैं, जैसे जहां पर एंटीबॉडी जो बनता है हमारे बॉडी में, अगेन कहीं ना कहीं रोल ऑफ प्रोटीन्स होता है. तो एक बहुत बड़ा पजल हमेशा रहा है कि कैन वी मेक न्यू प्रोटीन इन द लैब, राइट? क्या हम लैब में नए प्रोटीन बना सकते हैं, न्यू प्रोटीन डिजाइन कर सकते हैं, क्या नए प्रोटीन स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि लिविंग फॉर्म के जैसे ही प्रोटीन्स हो, जैसे इंसान के अंदर है या अन्य जीवों में जो पाए जाते हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ में जो प्रोटीन उसके जैसा ही हो, बट वो न्यू प्रोटीन हो, मतलब नॉट एग्जैक्टली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इज सिमिलर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. कैन दैट बी मेड इन द लैब? दैट हैज बीन डन. सो द फर्स्ट नोबेल लॉरेट डेविड बेकर, he is from the US, he is got the Nobel Prize for design, protein structure design. और इन्होंने एक ऐसा प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जो कि लिविंग प्रोटीन जैसा तो है, लेकिन उसको आर्टिफिशियली लैब में बनाया गया. दैट इज कॉल्ड टॉप 7. व्हाट इज कॉल्ड हियर टॉप 7? आई शो यू द फोटोग्राफ हियर. दिस इज अ टॉप 7 फोटोग्राफ. जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो, दिस फोटोग्राफ, it is a artificially created protein in the lab, जो कि लैब में ये नया प्रोटीन बनाया गया. इसका नाम है टॉप 7. Now this work of David Baker, the first Nobel laureate, paved the entire area of research into biopharma, pharmaceutical industry, and also in vaccine development, new type of molecules. इवन ये भी है कि आने वाले टाइम में नैनो टेक्नोलॉजी, दैट अनदर इमर्जिंग एरिया, एंड नैनो टेक्नोलॉजी प्लस बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज अ नैनो बायोटेक्नोलॉजी गोइंग टू ट्रांसफॉर्म एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो नैनो मटेरियल्स की हम बात करते हैं, जैसे कि नैनो मेडिसिन, तो आजकल आप बात करते हैं हम लोग नैनो गोल्ड पार्टिकल, दैट इज अ एलिमेंट विच इज मेड नैनो साइज ड्रग डिलीवरी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. फॉरगेट दैट, आप इनको भूल जाइए. आने वाले समय में ऐसे नैनो मटेरियल्स होंगे जो बायोलॉजिकल होंगे, जो कि प्रोटीन होगा. इमेजिन करो, प्रोटीन क्या है? बायोमोलिक्यूल है. क्या उसका साइज है? नैनो. व्हाट इज नैनो? 10⁻⁹ मीटर्स. इतने छोटे साइज के ऐसे नैनो मटेरियल्स बनाए जा सकेंगे जो कि अलग अलग बॉडी के फंक्शंस को मिमिक कर सकता है. एंड नॉट ओनली दैट, इवन फॉर ड्रग डिस्कवरी, medicine, for vaccine, for any kind of a human need that we can artificially create. So David Baker, the first scientist, he opened the entire gate for developing new type of proteins in the lab, and he did that. That is where nanotechnology plays a very important role. What you can see here, 2016 new nanomaterials up to 120 proteins. Then 2017 proteins that bind to an opioid called fentanyl. This called them. Then again 2021 nanoparticles, yellow color, with protein initiating the influenza virus, which has been developed in the lab. Then 2022 proteins that function as a type of molecular rotor, that is a imagine nano machine. उसके लिए भी नोबेल प्राइज अलग से दिया गया है.
nano machine, the protein which work like a machine, molecular machine, right? Small size which you cannot see with naked eyes. And 2024 geometrically shaped protein that can change their shape. Imagine karo, as a protein which can change the shape in terms of kind of input, and then can work like a biological machine. So that what David Baker research has led to that. Now I am coming to the other two scientists who have been given half prize, again split into half and half, 1/4, 1/4. Both the scientists from DeepMind, that's a Google company. Now what they did that, they have made a very important thing, what is called here AlphaFold 2. What you can see them, both of them are here, AlphaFold 2. They developed computational method, that is a computational protein prediction, डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रिडिक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर. 50 साल से अधिक वैज्ञानिकों का हमेशा ये रिसर्च रहा है कि क्या हम अमीनो एसिड के द्वारा प्रोटीन की क्या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो इन लोगों ने कंप्यूटेशनल साइंस को यूज करके एंड अगेन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके दे डेवलप्ड अ वेरी पावरफुल टूल which can predict structure of amino acid from their part of amino acid, plus at the same time using the structure of amino acid they are folding alpha, beta and the 3-dimensional form of folding can predict the entire structure of protein. कल्पना कीजिए कि कोई भी प्रोटीन जो है जिसके हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है कि 3D स्ट्रक्चर क्या है, क्या हम उसके अमीनो एसिड के सीक्वेंस से क्या हम वो स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो इस पे AlphaFold 2 नाम का सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया. डीप माइंड गूगल की कंपनी है जिसने ये डेवलप किया. ये दो वैज्ञानिकों ने, दैट इज जॉन जंपर एंड डेमिस हैसाबिस, इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर AlphaFold 2 को डेवलप किया है, बाय विच अगर किसी वैज्ञानिक को यह पता हो कि अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या है तो वो कंप्यूटेशन जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोटीन डिजाइन का स्ट्रक्चर बता सकता है. पाथ ब्रेकिंग इज अ पाथ ब्रेकिंग वर्क which use the ICT tool, advanced computational science, into the field of biotechnology, into the field of biochemistry, into the field of molecular biology, in the field of life science. That has been done. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इन्होंने जो मॉडल डेवलप किया है, if you see here, this is where the AlphaFold 2 is there. What you can see in the photograph, AlphaFold 2. That means you have to only put the data entry. जो मैंने भी बताया bioinformatics. There are some kind of software by which scientists has been trying to understand the protein structure and all. लैब में कुछ नहीं करना है. कोई भी वैज्ञानिक कोई भी प्रोटीन है अगर उसका वो अमीनो एसिड सीक्वेंस कर ले, आज ये पॉसिबल है बायोटेक्नोलॉजी में कि हम अमीनो एसिड के सीक्वेंस किसी भी प्रोटीन का हम डिसाइफर कर सकते हैं. Once a scientist get the sequence of amino acid of any protein, right, from the nature, from the living organism, that sequence of proteins, that is a amino acids, जिसको बोलते हैं ना कि linear chain of amino acid जो connect होके peptide chain बनाता है. There are 20 standard amino acid which makes any kind of protein what we think of human body or any animal, any plant, any living organism. So if we can know the sequence of amino acids, then through this software AlphaFold 2 of DeepMind can give us the exact 3-dimensional structure of the protein. और केवल 3D स्ट्रक्चर कंप्यूटेशनल ग्राफिक के तौर पे नहीं, साथ साथ में किससे सिमिलर है, what is called proteomics, is a branch of biotechnology called proteomics, that is a study of structure and function of proteins. That means this AlphaFold 2 not only can give us the design of 3-dimensional structure of the protein from amino acid sequence, but also can give us comparative analysis of this protein is similar to which all type of proteins in human body or other living organisms. ये बहुत बड़ा पाथ ब्रेकिंग थिंग हुआ है और ये AlphaFold 2 न्यूज में था, लास्ट 3-4 साल में ये न्यूज में था. और इस टूल का यूज, इस सॉफ्टवेयर का यूज, इस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो टेक्निक का यूज, AlphaFold 2 का यूज हैज बीन डन बाय थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन related scientists worldwide to get different type of structures of proteins. मतलब कमाल की बात है. मतलब इतने सारे वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड वाइड गूगल कंपनी के AlphaFold 2 का यूज करके पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है और कई तरह के नए प्रोटीन्स को खोजा
और अनरेबल किया, मतलब इट हैज ओपनड द एंटायर Pandora's box of protein science. A new science has emerged. That is what you can see here in the photograph. What they use the AI tool, मतलब AI के मदद से, है ना, AI के मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की मदद से, अल्फाफोल्ड 2 की मदद से, डीप माइंड गूगल की जो कंपनी है, उन्होंने ऐसा कंप्यूटेशनल टूल डेवलप कर दिया कि हम अमीनो एसिड के सीक्वेंस से किसी तरह का प्रोटीन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. दिस नॉट ओनली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसका डिजाइन कंप्यूटेशन बना सकते हैं, but we can also make new type of proteins. That's really outstanding thing there. So what is there here, as you know that you all who are right now watching this session and trying to understand, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये चीज समझ जाए, आप जितने लोग लाइव हो अभी, और ये बात जो मैं अभी समझा रहा हूं, अगर ये बात आपने समझ लिया तो सोचो कि आने वाले टाइम में क्या क्या नई खोज हो सकती है, राइट? And I have kept it bilingual because so that people from both the background can understand this particular one. So I have this series what I've done, right? I have the series what I've done from last 2 days, medicine, physics, and now chemistry. This will remain there in my platform, and anybody whenever will watch will get the insight here. तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये बताता है कि आने वाले टाइम में AI कितना बड़ा चेंज ला सकता है और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में कितना होता है. एक बात और ध्यान रखना है, केमिस्ट्री का अवार्ड है ठीक है, केमिस्ट्री का अवार्ड है, लेकिन ये किससे जुड़ा हुआ है? बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी. किससे जुड़ा हुआ है? AI से जुड़ा हुआ है. अब सोचो केमिस्ट्री क्यों आ गया, कि बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, लेकिन कहां किससे जुड़ा हुआ है? बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है. और इसमें क्या चीज का यूज हो रहा है? कंप्यूटेशनल साइंस. अब आप सोचो कि नोबेल प्राइज केमिस्ट्री मतलब वो लैब बेस्ड केमिस्ट्री नहीं रह गया है राइट? लैब बेस्ड केमिस्ट्री, दैट मींस साइंटिस्ट डूइंग सम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और समथिंग इन द लैब, केमिकल सिंथेसिस, बात वहां तक नहीं रह गई है. नाउ द नोबेल कमिटी इज ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज ऑल दोज साइंटिस्ट हु आर डूइंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, है ना, ऐसे वैज्ञानिक जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च कर रहे हैं और जिसका एप्लीकेशन केमिस्ट्री में है, उसके लिए नोबेल प्राइज दिया जा रहा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन हो रहा है नोबेल कमिटी के द्वारा. दैट मीन नोबेल कमिटी इज इवॉल्विंग ईयर बाय ईयर टू रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट हु हैव रियली कंट्रीब्यूटेड, ताकि उनके कंट्रीब्यूशन को नकारा ना जा सके, उनको रिकॉग्निशन मिल सके, है ना. कोई जरूरी नहीं कि प्योर केमिस्ट्री ही हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कई बार अप्लाइड एरिया ऑफ केमिस्ट्री, उसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगेन US, right? US is again their number one with number of Nobel Prize in science. तो कई बार लगता है कि इंडिया में भी इतने रिसर्च हो रहे हैं, we are also doing so much of research, but हमारे नोबेल लॉरेट्स साइंस के आ नहीं पा रहे. इवन बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट हैं जो कि इंडिया के बाहर, US में, यूरोप में कई लैब में कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको नोबेल प्राइज में रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही है. तो ये बड़ा कई बार लगता है कि क्या इंडिया का नोबेल प्राइज का टैली इंक्रीज होगा? फॉरगेट अबाउट इंडिया, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, कंट्रीज ऑफ एशिया, वी डोंट कम अक्रॉस मेनी नंबर्स ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स. हर साल हम ये पाते हैं कि US के जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं या जो ऐसे कॉलेजेस हैं और जो ऐसे लैब्स हैं, वहां से नोबेल प्राइज मिलता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात को समझने के लिए कि अगर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में सच में आगे होना चाहता है, रैंक 1 आना चाहता है ना, ये टॉप रैंकिंग कंट्रीज के लीग में आना चाहता है, तो वी हैव टू स्केल अप आवर साइंटिफिक रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, लैब्स, वो सारी चीजें. रोटी कपड़ा मकान ठीक है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान के अलावा हमें साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में करना होगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो उसी से हमारा इकोनॉमी डिपेंड करता है, हमारा सोशल इकोनॉमिक लाइफ डिपेंड करता है. आई ऑलवेज बिलीव दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी मच कनेक्टेड विथ ह्यूमन लाइफ्स, एंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली द ह्यूमंस, सोसाइटी, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, बिजनेस, नेशनल सिक्योरिटी, every walk of life. So we need to look into here in our country for scientific development and proper way of research, advanced research
so that we are able to get more number of Nobel Prizes. ये एक सपना है, एक ड्रीम है कि इंडिया कभी ऐसा कर सके। तो नोबेल प्राइज के टैली में आज भी इंडिया सबसे नीचे पायदान में है। तो जरूरत ये है कि आज हम अपने जो यूनिवर्सिटीज, साइंटिफिक लैब्स हैं, उनमें हम बेटर फंडिंग करें और एडवांस रिसर्च की ओर हम करें। सोसाइटल चेंज बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, कि हमारा जो माइंडसेट जो है सरकारी नौकरी की ओर भागना, कर्मचारी बनना, बैंक करना, ये करना, हमें वहां चाहिए लोग, लेकिन जो हमारे साइंटिफिक जो टैलेंट है जो वेस्ट हो जा रहा है ऐसी चीजों में, वो साइंस में जाए, टेक्नोलॉजी में जाए और वो आगे ऐसे रिसर्च को करके देखें। So this is really very, very important for all us to understand, and I am very, very happy that you all are watching right now, and this is really going to be there. Now just to sum up here, that what you can see here, 20 standard amino acids, right? Protein is made of peptide chain, and peptide chain is made of standard amino acids, and those sequences that is called alpha, when they fold it become beta, and then it goes to 3D structure and finally quaternary structure that makes the entire part of protein, let's say hemoglobin, myoglobin, that part comes here. मैं थोड़ा सा ये चीज है, ये जैसे अल्फा फोल्ड 2 जो है, जो साइंटिस्ट डेवलप किया है वो चीज यहाँ पे, देन कमिंग टू हियर, ये चीज है जो कि कंप्लीट नए प्रोटीन को डेवलप किया गया, दैट इज अ टॉप 7 प्रोटीन which help the way of making more new type of molecules in terms of biopharma and other type of development which is required there, है ना। सेंसर्स वगैरह हो सकता है जिससे बायो सेंसर फ्यूचर में काम करेगा। देन अगेन हियर यू सी वेरी ब्यूटीफुल फोटोग्राफ हियर, दैट ट्विकिंग विद प्रोटीन्स, playing with the proteins there, that is what you can see here, right? So that is what you have here, and finally you have part of the Nobel Prize winners. So my dear friends, today being the last in the series of science for Nobel Prizes, I have completed this one. I hope you all like it, and you know that my YouTube channel, I am doing a lot of videos and good content in my YouTube channel. तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को प्रमोट करें, शेयर माय YouTube चैनल नीरज नचिकेता का जो लिंक है, एंड ऑल्सो द इंस्टाग्राम प्रोफाइल टू अदर्स। और जब आप YouTube में जाएं तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन so that this notification you will get that. And I am now very much aggressively pursuing all such kind of content which not only can help students and aspirants for different competitive exams including UPSC civil service exam, but also for general public to understand science, technology, environment. तो आई थिंक ये जो मेरा पहल है, जो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सबको एक जानकारी मिले, एक नई चीजें मिली, तो वो आप लोगों को है ना काफी जागरूक करे, और यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आई एम ट्राइंग टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, एंड आप लोगों का सपोर्ट है, एंड अब जो आप ये लाइव देख रहे हैं एंड यू आर सपोर्टिंग देयर, सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स keep in touch, and I will always be coming live like this and bring new content. You will be seeing a lot of things there. ठीक है, तो with this I wish that India should get Nobel Prizes. हमारा सपना जो Nobel Prize का वो हो, and with this I will end my session here, and I'll see you soon again. Take care. Thank you. Bye bye. Thank you everyone. Keep following and keep subscribing, and again please share, and whatever you have please write in the comment box. I will be very happy to answer your queries. Thank you. Take care. Bye bye. Thank you.